حکومت کا غریب اور پسماندہ طبقے کے لیے بڑا ریلیف۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا 5 بنیادی اشیاء ضروریہ کم نرخوں پر فراہم کرنے کا فیصلہ۔ آٹا، چینی، گھی، خوردنی تیل، چاول اور دالیں مارکیٹ سے کم ریٹ پر دستیاب ہوں گی۔ سبسڈی یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے پورے ملک میں فراہم کی جائے گی۔ پسماندہ طبقے کو ریلیف کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ سبسڈی کا نظام شفاف اور ڈیجیٹل بنایا جائے۔ خیبر پختونخوا میں سستے آٹے کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ بلوچستان میں یوٹیلیٹی سٹورز کے ساتھ موبائل سٹورز بھی قائم کیے گئے ہیں۔ کراچی میں یوٹیلیٹی سٹورز کی تعداد میں اضافے کا جامع منصوبہ 2 ہفتے میں پیش کیا جائے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اجلاس میں ہدایت۔ انتخابی اصلاحات بل پر صدر مملکت کا طرز عمل افسوسناک ہے۔ ملک عمران خان کی مرضی کے مطابق نہیں، آئین اور قانون پر چلے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی منشا ہے کہ انتخابات ان کی مرضی کے مطابق ہوں۔ وفاقی وزیر اقتصادی امور سردار ایاز صادق کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ احتساب کے عمل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ نیب بل کی 85% ترامیم وہی ہیں جو پی ٹی آئی حکومت نے آرڈیننسز کے ذریعے کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا احتساب قوانین پر اپوزیشن کو مناظرے کا چیلنج۔ آئی ایم ایف پروگرام جلد بحال ہو جائے گا۔ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے پر کوئی اعتراض نہیں کیا گیا۔ 12 لاکھ سالانہ آمدن پر انکم ٹیکس چھوٹ برقرار رہے گی۔ غریب عوام کو ریلیف ملے گا اور امیروں پر ٹیکس لگے گا۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل۔ وزیر توانائی خرم دستگیر خان کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات۔ ایران سے گوادر کو بجلی کی فراہمی پر تبادلہ خیال۔ توانائی کے شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کو اردن کے وزیر خارجہ کا ٹیلی فون۔ مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے چھوٹے کاشتکاروں کو آسان اور بلا سود قرضوں کی فراہمی کے لیے جامع پلان طلب کر لیا۔ مارکیٹوں کی تشکیلیں نو کرتے ہوئے بہترین افرادی قوت بھرتی کی جائے گی۔ آنے والے دنوں میں ٹماٹر اور پیاز کی دستیابی یقینی بنانے کے لیے بروقت اقدامات کیے جائیں۔ حمزہ شہباز۔ پہلی ڈیجیٹل مردم اور خانہ شماری کے لیے معاہدہ۔ آزمائشی منصوبہ 18 جولائی سے 1 اگست تک ہوگا۔ 628 تحصیلوں میں 1,26,000 ٹیبلٹ استعمال ہوں گے۔ ادارہ شماریات مردم شماری کے نتائج بر وقت الیکشن کمیشن کو فراہم کرے گا۔ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال۔ بنی گالہ میں عمران خان کے گھر کے باہر خیبر پختونخوا کے ایڈ ہاک اساتذہ کا احتجاج۔ جس شخص کی اپنی دہلیز پر ضرورت مند احتجاج کر رہے ہوں مگر وہ بے حسی اور لا تعلقی کا مظاہرہ کرے، ایسے شخص کی ہر کال پر عوام بھی لا تعلق رہیں گے۔ منافقت اور منافق خان کو عوام اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز۔ ملک کے مختلف حصوں میں بدھ تک طوفانی بارشوں کا الرٹ جاری۔ خیبر پختونخوا، گلیات، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ ندی نالوں، دریاؤں میں طغیانی اور نشیبی علاقے زیر آب آ سکتے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ وقفے سے جاری۔ اسلام آباد سمیت بالائی علاقوں میں موسلادھار بارش۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان، کشمیر، سندھ اور شمال مشرقی بلوچستان میں مزید بارش کی پیش گوئی۔ صحرائے چولستان پر بھی بادل مہربان۔ گزشتہ رات ہونے والی بارش نے زمین کی پیاس بجھا دی۔ کئی ماہ سے پڑے خشک ڈوبے بھر گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم جاری۔ ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران مزید 3 نوجوان شہید۔ 24 گھنٹے میں شہداء کی تعداد 7 ہو گئی۔ شہادتوں کے خلاف مختلف علاقوں میں احتجاجی مظاہرے۔ طاقت کے وحشیانہ استعمال سے متعدد افراد زخمی۔ بھارتی فوج میں بھرتیوں کے نئے نظام اگنی پتھ کے خلاف پرتشدد مظاہرے جاری۔ بہار، تلنگانہ، اتر پردیش اور مغربی بنگال میں جلاؤ گھیراؤ۔ 369 ٹرینیں منسوخ۔ اپوزیشن رہنما راہل گاندھی کی مودی حکومت پر کڑی تنقید۔ بی جے پی حکومت کو زرعی قوانین کی طرح اگنی پتھ بھی واپس لینا ہی پڑے گا۔ لاہور میں بی سی بی کی جنرل باڈی کا اجلاس۔ قومی ٹیم کی موجودہ رینکنگ پر بریفنگ۔ بلائنڈ اور ڈیف ٹیمز کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان۔ سالانہ اور اکاؤنٹس کی آڈٹ رپورٹس کا جائزہ۔
वसीम अकरम की बॉलिंग का सहर बरकरार। लंदन में चैरिटी मैच में स्विंग के सुल्तान की ऑल राउंड कारकर्दगी, बॉलिंग से 3 शिकार, बल्ले के भी खूब वार, लिफ्ट सेंचुरी स्कोर कर डाली। उर्दू के अजीम मुसन्निफ और अदीब जिनके जुमले ज़रबुल मिसल बने, उनका अहद यूसुफी कहलाया। मुश्ताक अहमद यूसुफी को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। चाशनी और लताफत की बदौलत करोड़ों परस्तारों के दिलों में आज भी जिंदा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद और मैं हूं सलमा कौसर। नाज़रीन, रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज़ान इशा का वक्त हुआ चाहता है। आइए सुनने की सआदत हासिल करते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला फलाह, हय्य अला फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। हुकूमत ने गरीब और पसमानदा तबके को रिलीफ की फराहमी के लिए फैसला किया है कि आटा, चीनी, घी, खुर्दनी तेल, दालें और चावल कम निर्खों पर दिए जाएंगे। ये सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए फराहम की जाएगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की सब्सिडीज को यकजा करके जामे निज़ाम मुरतब करने और कराची में यूटिलिटी स्टोर्स की तादाद में इजाफे की हिदायत की है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में पसमानदा तबके को रिलीफ की फराहमी के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर हुआ। ये फैसला किया गया कि 5 बुनियादी ज़रूरी अशिया जिनमें आटा, चीनी, घी, खुर्दनी तेल, दालें और चावल शामिल हैं, कम निर्खों पर यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए फराहम की जाएंगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुस्तहिक अफराद को रिलीफ देने के लिए हुकूमत पुरअज़्म है। उन्होंने यूटिलिटी स्टोर्स हुकाम को हिदायत की कि सब्सिडी का निज़ाम शफाफ और डिजिटल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सब्सिडी के निज़ाम में इस्लाहात के लिए खजाना, सनत व पैदावार और तखफीफ गुर्बत की वजारतें मिलकर हिकमत अमली तश्कील दें और ये सब्सिडी यूटिलिटी स्टोर के जरिए मुल्क भर में गरीब और पसमानदा तबके को फराहम की जाए। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कराची में यूटिलिटी स्टोर्स के नेटवर्क में तोसी की मंजूरी देते हुए कहा कि इस सिलसिले में जामे मनसूबा 2 हफ्ते में पेश किया जाए। इजलास को यूटिलिटी स्टोर्स पर दी जाने वाले सब्सिडी, पसमानदा तबके को टारगेटेड सब्सिडी, यूटिलिटी स्टोर्स की मुल्क भर में तादाद में तोसी और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आज़म की विजन के तहत सस्ते आटे की फराहमी के प्रोग्राम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। शुरका को बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर कारपोरेशन 3800
822 स्टोर्स को बराह रास्त और 3180 फ्रेंचाइजेज पर मुश्तमिल है। 30 जुलाई तक बलूचिस्तान, सिंध, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और पंजाब में 300 से जायद नए स्टोर्स बनाए जाएंगे। वजीर आजम रिलीफ पैकेज के तहत अब तक 11 करोड़ 30 लाख मुस्तहिक अफराद मुस्तफीद हो चुके हैं। ब्रीफिंग में बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा में 942 यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर 1000 नए सेल्स पॉइंट और 200 मोबाइल स्टोर्स का इजाफा भी किया जा रहा है। इसके अलावा वजीर आजम की खुसूसी हिदायत पर बलूचिस्तान में जरूरी अशिया की रियायती निर्खों पर फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। इस मकसद के लिए यूटिलिटी स्टोर्स के साथ मोबाइल स्टोर्स भी कायम किए गए हैं। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अवामी नेशनल पार्टी के रुकन कौमी असम्बली अमीर हैदर खान होती ने इस्लामाबाद में मुलाकात की और सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कौमी असम्बली के अरकान चौधरी फकीर अहमद, आयशा रजब अली, शगुफ्ता जमानी और सुहेल खान और साबिक सेनेटर आगा शाहजेब दुरानी ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अलग अलग मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने पार्लियामेंट से मंजूर होने वाला कौमी एहतसाब तरमीमी बिल बगैर दस्तखत के वापस कर दिया है। सदर ममलिकत ने कहा कि ज़ाती तौर पर पाकिस्तान के आइन की तकलीद और पासदारी करता हूँ, बखूबी आगाह हूँ कि दस्तखत न करने के बावजूद ये बिल कानून की हैसियत इख्तियार कर लेगा। वज़ीर तवानाई इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने तेहरान में ईरानी हम मनसब अली अकबर मेहरबान से मुलाकात की और दो तरफा ताल्लुकात और पोलैंड से गवादर को बिजली की फराहमी पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर तवानाई ने पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन को सराहते हुए इसे मजबूत वुसअत देने के आज़म का इआदा किया। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान ने गवादर के लिए बिजली की दरामद को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने उम्मीद जाहिर की है कि IMF प्रोग्राम जल्द बहाल हो जाएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि IMF को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे पर कोई एतराज नहीं, 12 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स छूट बरकरार रहेगी। वज़ीर खजाना ने कहा कि हमारी पॉलिसी गरीब आवाम की बजाय वसाइल रखने वाले अफराद को टैक्स दायरा कार में लाना है। मुल्क की पहले डिजिटल मरदम और खाना शुमारी के लिए इदारा शुमारियात और नादरा के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, जिससे दुरुस्त और मुस्तनद आदाद शुमार हासिल होंगे। इस बारे में तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। मुल्क में मजमूई तौर पर 7वीं और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बुरोकार लाते हुए पहली मरदम व खाना शुमारी रवां साल होगी। डिजिटल मरदम व खाना शुमारी के लिए ब्यूरो ऑफ शुमारियात के डॉक्टर नईम जफर और नादरा के चेयरमैन तारिक मलिक ने मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके तहत नादरा PBS को टैबलेट और डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर फराहम करेगा। डिजिटल मरदम व खाना शुमारी के लिए 628 तहसीलों में 1,26,000 टैबलेट इस्तेमाल होंगे। पोर्टल के जरिए शहरी खुद भी अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। डिजिटल मरदम व खाना शुमारी का पायलट प्रोजेक्ट 18 जुलाई से 1 अगस्त तक होगा, जिसके बाद इसका दायरा कार मुल्क भर में फैला दिया जाएगा। इस मौके पर वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि आइन के तहत सूबों में वसाइल की तकसीम और नुमाइंदगी इसी मरदम व खाना शुमारी के डेटा से जुड़ी है। इस डिजिटल सेंसस से हमें अपनी आबादी के हवाले से और अपने मुल्क की आवाम के बारे में बहुत कलीदी मालूमात मिलेंगी। ये हमें बर वक्त और सही और मुस्तनद डेटा जो है उसकी फराहमी का ज़रिया बने, और इसी के साथ अगला जो आम इंतखाबात का मरहला है वो जुड़ा हुआ है, चूँकि जब मरदम शुमारी के नताइज आएंगे तो इसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन अपनी हल्का बंदी की एक्सरसाइज को हतमी शक्ल दे सकता है। इससे कबल वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने 7वीं मरदम व खाना शुमारी के लोगों का इफ्तिताह भी किया। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि इंतखाबी इस्लाहात बिल पर सदर ममलिकत का तर्ज अमल अफसोसनाक है। मुल्क इमरान खान की मर्जी के बजाय
आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। इजलास की तफसील राहील अंसार से। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने कहा कि कल सदर मुमलिकत ने इलेक्शन इस्लाहात का बिल दूसरी मरतबा वापस भेज दिया है, जो दुरुस्त रवैया नहीं। सदर साहब ने पहली दफा रिजेक्ट किया, बेशुमार उसमें उन्होंने चीजें लिखी। लॉ मिनिस्टर और हमारे ऑनरेबल मेंबरान ने एक एक पॉइंट का जवाब भी दिया। दूसरी दफा गया, उन्होंने फिर कह दिया जी मुझे बहुत अफसोस की बात है जो अखबार में लिखा था। अफसोस की बात है, यहां बैठ के उसमें देती अपने रिकमेंडेशन। प्रेसिडेंट साहब हैज फेल्ड टू फुलफिल हिज ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज। एक शख्स की मर्जी इस पे ना मुसल्लत की जाए और डिक्टेशन अपनी पार्टी से, अपनी जमात से लेना मुनासिब नहीं है। ये जमहूरियत जो रवायत और कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स ऑफ बिजनेस को जो वायलेट किया जा रहा है, ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि इससे कबल भी उन्होंने पाकिस्तान टूटने और अफवाज पाकिस्तान के हवाले से इमरान खान के बयान का मामला इस ईवान में उठाया था। मेरी स्पीकर से ये दरख्वास्त है कि इस मामले पर स्पीकर की जानिब से हुकूमत पाकिस्तान के नाम मकतूब अरसाल किया जाना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा कि पार्लियामेंट से मंजूर करदा बिल आइन की रूह से कल नोटिफाई हो जाएंगे। वजीर तजारत सैयद नवीद कमर ने कहा कि मुल्क में खाद की कमी को पूरा करने के लिए खाद दरामद की जा रही है। बजट पर बहस में हिस्सा लेते हुए हुसैन इलाही, ताहिरा बुखारी, आलिया कामरान, नवाब यूसुफ तालपुर, मौलाना मोहम्मद अनवर और सलाहुद्दीन अयूबी ने कहा कि महंगाई के खात्मे के लिए खसूसी इकदामात की जरूरत है और ज़राअत का शोबा खसूसी तवज्जो का तलबगार है। चौधरी फकीर अहमद की जानब से 12 साल बच्ची से ज्यादती और कत्ल से मुतल्लक उठाए गए सवाल पर डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग देते हुए कहा कि आईजी पंजाब 3 रोज में मुजरमान को गिरफ्तार करे। कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 1:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कि माजी में एहतसाब के अमल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। एहतसाब कवानीन की 85% तरामीम वही हैं जो PTI हुकूमत ने 2 ऑर्डिनेंस के जरिए की। उन्होंने ये बात सेनेट इजलास में कही। तफसील बताएंगे राना शहजादुस्सलाम। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की सदारत में हुआ। नैब कानून पर अपोजिशन के एतराज़ात का जवाब देते हुए सेनेट में कायदे ऐवान वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि माजी में एहतसाब के अमल को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा कि हम पर NRO 2 का इल्ज़ाम लगाने वालों के अपने करप्शन के किस्से सामने आ रहे हैं। आप इसे NRO का नाम देते हैं, NRO ये आपके लिए, मैं ये बात हल्फिया कहता हूँ, किस्से आपके निकल रहे हैं। वो चाहे 54 अरब रुपया शहजाद अकबर साहब का दिया गया जो कि माल मसरूका बरामद हुआ और जमा करा दिया गया किसी शख्स के जुर्माने की मद में, वो चाहे लाहौर का इंटरनेशनल होटल है जहां पे रेजिडेंशियल कनाल की कीमत 11 करोड़ रुपए है माल रोड के ऊपर, उसे 12 करोड़ कनाल पे 26 मंजिलों के साथ बेच दिया गया। ये उस्मान बुजदार साहब के लिए NRO है जिन्होंने 900 कनाल ज़मीन रातों रात अपने नाम करवा ली थी। ये तो फरा गोगी के लिए NRO है जिसके ऊपर 20 मुकदमात खड़े किए हुए हैं लोगों ने। बजट बहस में हिस्सा लेते हुए सेनेटर नसीमा एहसान, आबदा अजीम, डॉक्टर सानिया निश्तर, सीमी एजदी, खालदा आतीब, कैशुबाई, डॉक्टर जरका तैमूर सोहरवर्दी और मुश्ताक अहमद ने कहा कि वफाकी बजट मुश्किल हालात में बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम माशी इस्तेहकाम के लिए नहायत ज़रूरी है। उन्होंने बजट तजावीज़ देते हुए कहा कि सिगरेट और सॉफ्ट ड्रिंक्स पर टैक्स लगाया जाए, ज़राअत और शोबा तालीम की तरक्की के लिए मुख्तस फंड्स मजीद बढ़ाए जाएं, गैर तरक्याती अखराजात ख़त्म करके सादा तर्ज ज़िंदगी अपनाया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि कबायली इजला के अवाम की कुर्बानियों की बदौलत आज हम चैन की नींद सोते हैं। हमें पसमानदा इलाकों की तरक्की के लिए ज्यादा रकूम देनी चाहिए। सेनेट का इजलास मंगल दोपहर 3 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आला हमजा शहबाज से वज़ीर ममलिकत उमूर खारजा हिना रब्बानी घर ने लाहौर में मुलाकात की और अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए काविशों को सराहते हुए कहा कि अहदाफ की कामयाबी से तकमील पाकिस्तान की जीत है। पूरी उम्मीद है कि FATF टीम के दौरे के बाद पाकिस्तान वाइट लिस्ट में वापस आ जाएगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज से रुकनी सूबाई असेंबली जलील अहमद शर्कपुरी ने भी मुलाकात की और अवामी अहमियत के उमूर पर तबादला ख्याल किया। जलील अहमद शर्कपुरी ने वज़ीर आला हमजा शहबाज की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया।
वज़ीर आला पंजाब ने छोटे काश्तकारों को अखवत तंजीम की तर्ज पर आसान और बिला सूद कर्जे देने के लिए जामी प्लान तलब कर लिया है। लाहौर में हमजा शहबाज शरीफ की सदारत में होने वाले इजलास में काश्तकारों को सहूलत और आवाम को ज़रूरी अशिया की फरहमी के लिए मुतादिद उमूर ज़ेर गौर आए। ये फैसला हुआ कि सूबे में मार्केट की तश्कील नौ करते हुए बेहतरीन अफरादी कुव्वत भर्ती की जाएगी। वज़ीर आला ने कहा कि आने वाले दिनों में टमाटर और प्याज की किल्लत पर काबू पाने के लिए बरवक्त दरामद के लिए इक़दाम की जाएँ। उन्होंने कहा कि ज़रूरी अशिया के मुनासिब नरखों पर फ्राहमी पर भरपूर तवज्जो दी जाए। हमजा शहबाज ने लाहौर समेत पंजाब की मंडियों में सफाई के इंतजामात और सहूलतों से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि कारोबारी सरगर्मियों के लिए सहूलतें बेहतर बनाई जाएँ। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना देते हुए समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी कर दी। जज साजिद अली आवान ने मामले की समाअत की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। एडवोकेट अमजद परवेज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बतौर वज़ीर आज़म मसरूफियात का तकाजा है कि उन्हें हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दिया जाए। दौरान समाअत वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जब भी अदालत ने उन्हें तलब किया उन्होंने अपना फ़र्ज़ और जिम्मेदारी समझते हुए हाज़िरी को यकीनी बनाया है। हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त सिर्फ इसलिए दी गई है ताकि कौमी और हुकूमती उमूर बगैर किसी रुकावट के अदा कर सकूं। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने बतौर वज़ीर आला शुगर मिल मालिकान की बजाय हमेशा गन्ने के काश्तकारों के मफाद को मद्देनजर रखा और हर शोबे में अवामी फलाह बहबूद को तरजीह दी। समाअत के बाद अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए हाज़िरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। खैबर पख्तूनख्वा में एडहॉक असातिज़ा की तंजीम यंग टीचर्स एसोसिएशन ने इस्लामाबाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइशगाह के करीब दूसरे दिन भी धरना दिया। तफसील बता रहे हैं फर्रुख भट्टी। इज्जत दो, इज्जत दो। एक तरफ इंसाफ के दावे तो दूसरी तरफ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा आज दूसरे रोज भी अपने हकूक के लिए बनी गाला इमरान खान की रहायश गाह के बाहर अपने मुतालबात लिए तहरीक इंसाफ के चेयरमैन से इंसाफ के मुंतजिर हैं। हमारे मुतालबात ये कि खैबर पख्तूनख्वा में एडहाक पर तकरीबन 58,000 असातिज़ा को भर्ती किया गया है 2018 से अब तक, और उन्हें ताहाल रेगुलर नहीं किया गया है और इसकी वजह से उनको ट्रांसफ़र की आज़ादी नहीं है, अलाउंसेस नहीं दिए जाते, इंक्रीमेंट्स नहीं दिए जाते, फीमेल टीचर्स को मैटरनिटी लीव नहीं दी जाती, माजूर अफराद को ट्रांसफ़र की आज़ादी नहीं होती, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना। हज़ारों की तादाद में बनीगाला चौक पहुँचने वाले एडहाक टीचर्स का कहना है कि वो गुज़श्ता 4 साल से खैबर पख्तूनख्वा में कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमत कर रहे हैं। हमारे वो बच्चे जिनको हम स्कूलों में पढ़ाते हैं वो भी आज शायद अपने घरों में बैठ के अपने फैमिलीज़ के साथ हमें देख रहे होंगे, तो उनको हम आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये कौम के मुस्तकबिल के साथ आप मत खेले खुदारा और हम पे रहम करे। खान साहब ने खुद बताया था कि कुबर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता है। मुजाहिरीन ने इमरान खान से मुस्तकिल भर्ती, तारीख तकरीरी से सीनियरिटी और सालाना इंक्रीमेंट देने का मुतालबा किया है। फर्रुख भट्टी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बनीगाला में इमरान खान के घर के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के एडहॉक असातिज़ा के एहतजाज पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि जिस शख्स की अपनी दहलीज पर ज़रूरतमंद एहतजाज कर रहे हों और वो सूबे का हुक्मरान हो और उनकी मदद कर सकता हो मगर बेहिसी और लाताल्लुकी का मुजाहरा करे तो ऐसे शख्स की हर कॉल पर अवाम भी इसी तरह लाताल्लुक रहेंगे जैसे कल एहतजाज की कॉल पर रहे। उन्होंने कहा कि मुनाफिकत और मुनाफिक खान को अवाम अच्छी तरह पहचानते हैं। और अब कुछ बात हो जाए मौसम की। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, चौलिस्तान के सहरा में 1.5 बरस बाद होने वाली बारिश खुशी और हरियाली की नवीद लेकर आई है। खुश्क साली के बायस हिजरत करने वाले वापस लौट रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे वकार हैदर। सहराए चोलिस्तान पर कुदरत मेहरबान हो गई। बादल बरस पड़े, शदीद गर्मी का जोर टूट गया। कई माह से खुश्क साली के शिकार इलाके में बारिश से लोगों ने सुख का सांस लिया। गुज़श्ता रात होने वाली शदीद बारिश के बाद कई माह से पड़े खुश्क टोबे भर गए और पूरा चोलिस्तान जल थल हो गया। ये पानी का हर कतरा चोलिस्तान के बासियों के लिए जिंदगी की उम्मीद है और जब बारिश होती है तो चोलिस्तान के लोग झोंक आबाद होने के गीत गाकर इसका जश्न भी मनाते हैं।
पानी की शदीद कमी और खुश्क साली के बायस हिजरत करने वाले चोलिस्तान के लोग अपने जानवरों के साथ वापस लौटने लगे हैं। 2 लाख से जायद बासी तकरीबन 1.5 बरस से इन बारिशों का इंतजार कर रहे थे कि बारिशें बरसें और पानी के टोपे भर जाएं ताकि चोलिस्तान सरसब्ज हो और यहाँ जिंदगी लौट आए। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिशों के बायस मुतादिद इलाकों के नदी नालों में तोग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा है। NDMA की जानिब से मुमकिना खतरे के पेश नज़र हिदायत जारी कर दी गई हैं। तफसील बताएंगे समीउल्लाह। मुल्क के बेशतर हिस्सों में प्री मूनसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस्लामाबाद समेत बलाई इलाकों, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर समेत पंजाब, सिंध और शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में मजीद बारिश का इम्कान है। मूसलाधार बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा, गिलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, जबकि खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और शुमाली इलाका जात के मकामी नदी नालों और दरियाओं में तोग़यानी का भी अंदेशा है। सबसे ज्यादा बारिश सुबह सिंध के शहर सखर में 82 मिलीमीटर, पंजाब के शहर झंग में 47 मिलीमीटर, इस्लामाबाद में 14 मिलीमीटर, बलूचिस्तान के इलाके बारखान में 19 मिलीमीटर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके बोंजी में 7 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद स्कर्दू गिलगित के माबैन परवाजें भी मनसूख हुई हैं। वफाकी वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान ने कुदरती आफात से निमटने के कौमी और सूबाई महकमों के हुकाम पर जोर दिया है कि वो मुतवक्का मूनसून बारिशों के मुमकिना तबाहकुन असरात से निमटने के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उन्होंने कहा कि सैलाब से निमटने के लिए इलाके और वसाइल को मुतहर्रिक करने के साथ जिलावार हंगामी मनसूबाबंदी के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। शहरियों को भी हिफाजती हदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर, मर्दान, नौशहरा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला और लाहौर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने, आंधी और तेज हवाओं के बायस खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचने का भी खतरा है। ताहम किसी भी नागहानी सूरत से निमटने के लिए मुतलका इदारों को खबरदार कर दिया गया है। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। रुख करेंगे बलूचिस्तान का। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बायस PDMA समेत मुतालिका इदारों ने मौसर इक़दामात किए हैं। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से सरफराज शेख। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी अजला में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। जोब, शिरानी, मुसाखिल, बारखान, सिब्बी, डेरा बुगटी और कोलू के कुछ इलाकों में शदीद बारिशों से तुग़यानी का सामना रहा। सिब्बी में दरियाए नाड़ी और लहड़ी नदी में सैलाबी रेले का गुजर हुआ, जबकि कुटमंडाई बीची नदी में पिकअप गाड़ी सैलाबी रेले में बह गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। शदीद बारिशों से कोहलू में सोनारी पुल बह जाने के बाद इंतजामिया की जानिब से आर्जी तौर पर ज़मीनी राब्ता बहाल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर और DDMS के साथ उनके साथ राब्ते में हैं। जिस तरह एक आध दो वाक़यात हुए हमारे इनके आपके कोहलू के और इन एरियाज़ में जहाँ पे जो ब्रिजेज़ हैं वो टूटने के वाक़यात जो रिपोर्ट हुए, तो उनके साथ कोऑर्डिनेट करके हमने रिलीफ एटम भी डिस्पैच करवाए। फर्दर जो मशीनरी उनको अवेलेबल वो उनको नीड थी वो भी इंश्योर करवाई, अवेलेबल करवाई वहाँ पे। PDMA ने कोहे सलेमान और हरनाई रेंज के साथ मुल्हका इलाकों में फ्लड वार्निंग जारी की है। प्री मानसून बारिशों से मौसम खुशगवार है और गर्मी का जोर टूट चुका है। उम्मीद की जा रही है कि इन बारिशों से ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह बुलंद होगी और फसलों पर अच्छे असरात मुरतब होंगे। सरफराज शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। सिंध में भी प्री मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। शदीद गर्मी से मुरझाए चेहरे खिल उठे हैं। तफसील नौरीन आसिफ से। मौसम गर्मा शुरू होते ही शदीद गर्मी की लहर ने पूरे सूबे को अपनी लपेट में ले लिया। शदीद गर्मी से मुतासिर शहरियों को महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की नवीद सुनाई गई, जिसके तहत प्री मानसून की बारिशों का आगाज हो चुका है। सिंध के कई इलाकों में गुज़श्ता रात कहीं मूसलाधार और कहीं हल्की बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 22 जून से गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है। इस दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश भी मतवक्को है। कराची में अभी तो चंद एक दिन कोई ऐसी मेजर बारिश का इम्कान नहीं है। अलबत्ता 22 तारीख को परसों यानी इम्कान हो सकता है कि कुछ गर्द आलूद हवाएं चलें और हो सकता है किसी किसी जगह में इक्का दुक्का जगह पे लाइट रेन भी हो जाए, लेकिन जनरली पार्टली क्लाउडी वेदर और रात में और सुबह में जैसे इम्कान होता है बूंदाबांदी का। मानसून की बाकायदा बारिश जो है सिंध में अभी तो प्री मानसून स्पेल चल रहा है, तो बाकायदा मानसून का स्पेल जो जून के आखिर में मतलब या जुलाई के शुरू में, तो
जुलाई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में प्री मानसून की बारिशों से गर्मी का जोर टूट गया है। महकमा मौसमियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता रात सबसे ज्यादा बारिश सक्खर में 82 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई, जबकि रोहड़ी में 34, जैकोबाद में 14, खैरपुर में 3 और लाड़काना में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नौरीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। और अब आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। तुरबत 46, दादू और शहीद बेनज़ीराबाद में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और आखिर में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत। इस्लामाबाद 30, लाहौर 36, कराची 35, पेशावर 34, कोयटा 34, गिलगित 21 और मुजफ्फराबाद में 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। बहुत शुक्रिया कासिम। यहाँ नाज़रीन आपको आगाह करें, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी को उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ऐमन सफ़ादी ने टेलीफोन किया और दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू की और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान की जानिब से रिहा किए गए 20 भारतीय माहीगीरों को वाघा बॉर्डर पर भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इन माहीगीरों की सज़ा मुकम्मल होने पर गुज़श्ता रोज़ रिहा किया गया। तर्जुमान ने उम्मीद जाहिर की कि इस मामले में इंसानियत को मद्देनज़र रखते हुए भारतीय हुकूमत भी इसी जज्बे के साथ जवाब देगी। भारत की रियासती दहशतगर्दी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजियों ने जुल्म सितम की इंतहा कर दी। जुल्म बर्बरियत की ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक काबिज फोर्सेस ने मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों में कुपवाड़ा में 2 और पुलवामा में मजीद 1 नौजवान को शहीद किया। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान शोहदा की तादाद 7 हो गई है। मकामी लोगों के मुताबिक फौजियों ने नौजवानों को गिरफ्तार करके कुपवाड़ा के इलाके लोलाब में एक जाली मुकाबले में शहीद किया। नौजवानों की शहादत पर जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। भारतीय फोर्सेस ने मुजाहरीन पर आंसू गैस समेत ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया, जिससे मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। भारत के बदनाम ज़माना तहकीकाती इदारे NIA ने भारतीय पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के हमरा वादी कश्मीर के कई मकामात पर छापों के दौरान मुतादिद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा हसनैन मसूदी ने एक बयान में मोदी हुकूमत पर जोर दिया है कि वो जेलों में नजरबंद कश्मीरी नौजवानों को रिहा करे, क्योंकि अपने प्यारों का इंतजार कश्मीरी वालदैन की जहनी और जिस्मानी सेहत को नुकसान पहुंचा रहा है। पनाह गुज़ीरों के आलमी दिन के हवाले से जारी की गई एक रिपोर्ट में कहा गया कि 33 साल से जारी भारतीय जुल्म और बर्बरियत ने 40,000 से ज्यादा कश्मीरियों को अपने घर बार छोड़ने और मकबूजा इलाके से बाहर पनाह गुज़ीरों की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया है। 1947 में सिर्फ जम्मू के लाखों मुसलमानों को डोगरा फौज और हिंदू जुनूनियों ने बेदखल किया था, जो आज़ाद कश्मीर, पाकिस्तान और बरतानिया में पनाह लेने पर मजबूर हुए। भारत में मुसल्लह अफवाज में फौजियों की भर्ती के लिए ऐलान करदा अग्निपथ स्कीम के तहत एहतजाज जारी है, जिसके दौरान 369 ट्रेनें मंसूख कर दी गई हैं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। अग्निपथ स्कीम में फौजियों को 4 साल के लिए भर्ती और मुद्दत के अख्ताम पर उनमें से 75% की पेंशन और दूसरी मुराद के बगैर रिटायरमेंट की तजावीज़ के नतीजे में नौजवानों ने मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पुरतशद्दुद एहतजाज किया। शाहराहों और रेलवे की पटरियों पर रुकावटें खड़ी कर दी और बोगियों को आग लगा दी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी है। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद मज़हर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि इस हवाले से ख़ुसूसी टास्क फोर्स बनाई जा रही है। टास्क फोर्स अक़लियतों के हकूक़ के हवाले से उठाए जाने वाले इक़दामात की निगरानी करेगी और इस हवाले से सहमाही रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, हत्ता कि कौमी असम्बली समेत सूबाई असम्बलियों में भी अक़लियतों के लिए मखसूस नशिस्तें रखी गई हैं। मुलाजमतों में कोटा रखा गया है ताकि वो पाकिस्तानी शहरी होने के नाते मुल्क के लिए अपने फ़राइज़ अंजाम दे सके। हिंदू, ईसाई और सिखों के मजहबी त्यौहार मनाने के लिए हुकूमती सतह पर ख़ुसूसी इक़दामात किए जाते हैं। हिंदुओं की होली, दिवाली समेत दीगर तकरीबात के इनकाद कराने की मुकम्मल आज़ादी होती है, जबकि ईसाइयों को क्रिसमस तकरीबात मनाने की भी मुकम्मल आज़ादी है। सिखों के मजहबी त्यौहार, बाबा गुरु नानक की पैदाइश के हवाले से तकरीबात हों या गुरुद्वारों की तज़ीन व आराइश, सिख मुकम्मल आज़ादी से अपनी मजहबी रसूमात अदा करते हैं। पाकिस्तान अक़लियतों के लिए पुरअमन मुल्क है। आइंदा माली साल के लिए बलूचिस्तान का बजट कल पेश किया जाएगा। इससे पहले ये इजलास 17 जून और फिर 20 जून को तलब किया गया था।
इस्लाम आबाद हाई कोर्ट ने मुतनाज़ बयान पर इमान मज़ारी एडवोकेट की जानिब से नदामत के इजहार पर मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त निपटा दी है। चीफ जस्टिस अतर बिस्मिल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इमान मज़ारी ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, इनको ऐसे अल्फाज अदा नहीं करने चाहिए। इमान मज़ारी अपने कहे पर नदामत का इजहार कर चुकी हैं। अदालत ने जमानत की दरख्वास्त को गैर मौसर करार देकर केस निपटा दिया। मुआशी माहिरीन ने कहा है कि चैलेंजेस से निपटने और मुआशी तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को हल निकालना होगा। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं कि इक्तिसादी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। तफसील जानते हैं मरियम मलिक से। इस्लामाबाद पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के ज़ेर एहतमाम ग्रैंड नेशनल डायलॉग का एहतमाम किया गया, जिससे वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने खिताब करते हुए कहा कि इस वक्त हमें गैर मामूली सूरत हाल का सामना है। हमने हुकूमत संभाली तो तरक्याती बजट 550 अरब तक रह गया था। आखिरी 3 माह के लिए तरक्याती कामों के लिए रकम दस्तियाब नहीं थी। आज हर पाकिस्तानी के लिए संजीदगी का वक्त है। हम अपनी अगली नस्ल को ऐसा रास्ता देकर जाएं कि माजी की गलतियां ना दोहराएं। आज हम एक गैर मामूली सूरत हाल में खड़े हैं। बहैसियत कौम अपना जायजा लें कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं और आइंदा मुस्तकबिल के लिए हम क्या मुख्तलिफ कर सकते हैं कि जिससे हमारे अगले 25 साल ज़ाय ना हो। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI आबिद सुलहरी ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने IMF के मुआहदों की खिलाफ वर्जी की। जो भी हुकूमत आए मईशत की मजबूती के लिए इकदामात करे। हमें इस पे कंसेंसस लाने की ज़रूरत है मईशत पे, और उसके लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनानी चाहिए हमें, इकनॉमिक सिक्योरिटी काउंसिल टाइप, जैसे नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है। सेनेट में उसको बनाया जा सकता है, पार्लियामेंट में बनाया जा सकता है, सेनेट में चूँकि अपोजिशन भी है वहाँ पर बनाया जा सकता है, और उसमें अस्करी अदारों का होना भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में है। साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट मोहम्मद हारून शरीफ ने कहा कि हम गलतियों को दोहराते ही जा रहे हैं। पाकिस्तान के चैलेंज से हमें खुद निपटना होगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने कहा है कि ज़रूरतमंद और मुस्तहिक अफराद से ताउन हमारी माशरती जिम्मेदारी है। इस सिलसिले में मुखय्यर हजरात का ताउन अहमियत का हामिल है। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में कश्मीर ऑर्फन रिलीफ ट्रस्ट के चेयरमैन चौधरी मोहम्मद अख्तर से गुफ्तगू करते हुए कही। चौधरी मोहम्मद अख्तर ने स्पीकर कौमी असेंबली को आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान में तंजीम की फलाही सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। राजा परवेज अशरफ ने तंजीम के फलाही कामों में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान के एहतजाज की तीनों कॉल्स बुरी तरह नाकाम हुई। AC वाले ठंडे कमरों से इनकलाब नहीं आता। उन्होंने कहा कि रियासत मदीना का राग अलापने वाले इमरान खान तोशा खाना खा गए। इमरान खान का असल चेहरा आवाम के सामने बेनकाब करते रहेंगे। कायदे इनकलाब जो है वो AC वाले कमरे के अंदर बनी गाला के अंदर छुपे बैठे हैं। कायदे इनकलाब के बच्चे बरतानिया में हैं। कायदे इनकलाब की घरवाली जो है वो 7 पर्दों में छुपी हुई हैं। एक पर्दा उठता है तो हीरे निकलते हैं, दूसरा पर्दा उठता है तो ज़मीन निकलती है, तीसरा पर्दा उठता है तो कोई कंपनियां निकलती हैं। जब आपसे हिसाब की बात की जाती है तब आपको इनकलाब याद आता है। जिस दिन आपके हीरे की चोरी निकले इनकलाब याद आता है, जिस दिन आपकी ज़मीन आपके नाम निकले उस दिन इनकलाब याद आता है, जिस दिन आपके नाम बड़ी कंपनियां चोरी की निकले उस दिन इनकलाब नजर आता है। ये इनकलाब नहीं, ये आप हिसाब से डर रहे हैं। गुज़श्ता एक दहाई के दौरान जंग, जुल्म सितम और दहशत से बचने के लिए पनाहगज़ीनों की तादाद में 2 गुना इजाफा हुआ है। किंजा नकवी की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। दुनिया भर में जंग, तासुब, कशीदगी, सियासी तनाव, इम्तियाजी सलूक और दीगर कुदरती आफात के बायस जो लोग अपने घरों से महरूम हो जाते हैं या अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह नकल मकानी कर जाते हैं, उनसे इजहार यकजहती और उनको दरपेश मसाइल से आगाही के लिए 20 जून को पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की सालाना ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस की वबा के बावजूद जंगों और तनाज़ात के बायस अपना घर छोड़ने वाले अफराद की तादाद में दुगना इजाफा हुआ है और दुनिया भर में पनाह गुज़ीनों की तादाद बढ़कर 27.1 मिलियन हो गई है, जबकि दूसरे ममालिक में सियासी पनाह लेने वालों की तादाद 11% इजाफे के साथ 4.6 मिलियन तक पहुँच गई है। पाकिस्तान का शुमार महाजरीन को पनाह देने वाले सरे फहरिस्त ममालिक में होता है। अफगानिस्तान में अमन व अमान की मखदूश सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान में लाखों की तादाद में अफगान बतौर महाजरीन गुज़िश्ता 4 दहाइयों से आबाद हैं। पाकिस्तान ने कमजोर माशी सूरत हाल के बावजूद हमेशा अपने अफगान बहन भाइयों की भरपूर मदद की है। आलमी यौम पनाह गुज़ीन 1951 के कन्वेंशन की 50वीं सालगिरह
اللہ की याद में 2001 में पहली बार मनाया गया था। इससे पहले ये दिन अफ्रीका रेफ्यूजी डे के नाम से मनाया जाता था। दिसंबर 2000 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने इसका नाम तब्दील करके आलमी यौम पनाह गुज़ीन कर दिया। इस दिन को मनाने का मकसद आवाम की तवज्जो उन लाखों पनाह गुज़ीनों की तरफ दिलवाना है जो अपना घर बार छोड़कर दूसरे मुमालिक में पनाह लेते हैं और अपने बुनियादी हकूक से महरूम रहकर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। किंजा नकवी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद।